Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of pathology, and today's topic is chronic obstructive pulmonary disease. Short form is COPD. It is most common disease. When you go into the ward, you can see those type of cases in the ward. Okay. Firstly, I will discuss about the definition. These are group of pathological conditions of lung characterized by chronic partial or complete obstruction of airway at any level from trachea to the smallest airway, resulting in functional disability. There are four important disorders categorized under the COPD. They include chronic bronchitis, emphysema, bronchial asthma and lastly bronchiectasis. तो क्या है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का डेफिनेशन? ये एक लंग का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हम लोगों का जो एयरवे है उसमें क्रॉनिक पार्शियल और क्रॉनिक कॉम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, लंग उसका फंक्शन नहीं कर पाता है. और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर में मेनली 4 ग्रुप ऑफ डिजीज आता है. एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, नेक्स्ट emphysema, third bronchial asthma, and lastly is the bronchiectasis. Okay, now I am discussing about the chronic bronchitis. First definition of chronic bronchitis: presence of persistent cough with productive sputum for a period of at least 3 months in 2 consecutive years. तो chronic bronchitis का definition क्या है? परसिस्टेंट काफ रहेगा पेशेंट का विथ प्रोडक्टिव स्पूटम प्रोडक्शन होगा. पीरियड कितना टाइम तक? 3 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ रहेगा इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर. मीन्स 2 साल में, कॉन्जिक्यूटिव 2 साल में 3 महीने तक उसका प्रोडक्टिव काफ रहेगा. जो काफ परसिस्टेंटली रहेगा वो ठीक नहीं होगा कोई भी दवाई लेने से, और प्रोडक्टिव स्पूटम प्रोडक्शन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. ओके. Next, etiology. Most common etiology are cigarette smoking, atmospheric pollution, individuals working in cotton and plastic factories, people exposed to organic and inorganic dust particle. So those are the most common etiological factor for development of chronic bronchitis. Okay. Next, I will discuss about the pathogenesis of chronic bronchitis. तो first, due to etiological factor, तो etiological factor includes chronic cigarette smoking, dust particle which includes silica, and alpha 1 antitrypsin deficiency. It is the genetic condition in which the alpha 1 antitrypsin, which is one type of protein, its deficiency takes place. Those are the most common etiological factor which what can occur? Continual bronchial irritation and inflammation occur. तो due to etiological factor bronchial wall में क्या होगा? Continue irritation होगा and inflammation होगा. Okay. Next, that may leads to hypertrophy and hyperplasia of mucus secretory gland. तो हम लोगों को सबको पता है लंग में बहुत सारा म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड है. तो ड्यू टू इरिटेशन, ड्यू टू इन्फ्लामेशन क्या होगा? वो ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया हो जाएगा. तो हम लोगों को जानना चाहिए हाइपरट्रॉफी क्या है. हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गन. ओके. और हाइपरप्लासिया मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल और टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन द ग्लैंड. तो जिसके वजह से हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया होगा. ओके. नेक्स्ट, इट में लीड्स टू म्यूकस हाइपर सिक्रेशन एंड सिलियरी डिस्फंक्शन. तो म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड का साइज बढ़ जा रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा? ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन होगा, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होगा. और पहले क्लास में भी मैं डिस्कस किया था, जो हम लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक है अप टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल तक क्या है? लाइंड विथ pseudo stratified columnar epithelium cell which contain cilia, or due to this mucus hypersecretion that may dysfunction the cilia. Okay. In the another way, increase inflammatory mediators like cytokines.
तो इरिटेशन के वजह से ब्रोंकियल वॉल में इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी जो मेडिएटर्स है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, मेनली साइटोकाइन, दैट में लीड्स टू फाइब्रोसिस एंड थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल। ब्रोंकियल जो वॉल है उसमें साइटोकाइन क्या करेगा, फाइब्रोसिस करेगा और उस वॉल को थिक कर देगा। बोथ में लीड्स टू नैरोइंग ऑफ द स्मॉल एयरवे। तो पहले क्या देखा था, पहले देखा था हाइपर सिक्रेशन हो रहा है म्यूकस ग्लैंड से, तो म्यूकस जाके सिलिया का डिसफंक्शन कर रहा है, सिलिया फंक्शन नहीं कर पा रहा है। और अपोजिट साइड में देखा था ब्रोंकियल वॉल में क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, थिकनिंग हो रहा है, जिसके वजह से जो है स्मॉल एयरवे जो है हम लोगों का लंग में वो सब नैरो हो रहा है, उसमें स्पेस नहीं हो रहा है, वो नैरो हो जा रहा है, दैट में लीड्स टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और that may lastly leads to chronic bronchitis. Okay, this is the pathogenesis of chronic bronchitis. Okay, next I will discuss about the pathology of chronic bronchitis. Means जब हम लोग किसी का chronic bronchitis होगा तो उसका लंग में क्या क्या चेंजेस आएगा, माइक्रोस्कोपिकली हम लोग क्या क्या देखेंगे, ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। On examination of the lung, the bronchial walls appear thick with the lumina showing mucus plaque. तो लंग में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने से ब्रोंकियल वॉल जो है वो थिकन हो जाएगा। पहले हम लोग डिस्कस कर लिया किस लिए थिक हो रहा है। और जो लुमिना है मीन्स जो हॉलो ट्यूब है ब्रोंकस का और ब्रोंकाई का, वहाँ पे क्या दिखेगा, म्यूकस प्लाक दिखेगा, क्योंकि जो म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड है वहाँ से ज़्यादा म्यूकस सिक्रेट करके वहाँ पे लुमिना को फिल कर देगा, जिसलिए लुमिना के अंदर में हम लोग म्यूकस प्लग दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिकली देयर इज मार्क्ड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ द ब्रोंकाई विथ पेरीब्रोंकियल फाइब्रोसिस। ये भी हम लोग डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। क्या होगा, हम लोग और भी देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर में। माइक्रोस्कोपिकली हम लोग देखेंगे जो म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड है उसका हाइपरट्रॉफी हो गया और हाइपरप्लेशिया हो गया, जिसलिए और उसके साथ दिखेंगे पेरीब्रोंकियल फाइब्रोसिस। ओके, दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल प्रोफाइल। ओके, तो क्लिनिकल प्रोफाइल मीन्स क्या क्या सिम्टम शो करेगा। कोई पेशेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लेके आ रहा है तो हम लोग कैसे उसको डिटरमाइन कर सकेंगे और उसको देख सकेंगे क्या क्या सिम्टम उसके अंदर में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, पार्सिस्टेंट काफ विथ एक्सपेक्टोरेशन। डेफिनेशन में ही था, पार्सिस्टेंट काफ रहेगा, स्पूटम रहेगा, प्रोडक्टिव स्पूटम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशेंट का बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, स्मॉल एयरवे जो है उसमें फंक्शन नहीं हो पा रहा है, एयर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, दैट में लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस शो cyanosis. I think you all know what is cyanosis. Cyanosis is the bluish discoloration in the skin, which is mainly occur due to poor oxygenation into the blood. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग में एयरवे जो है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो लंग से ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो जहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं फुलफिल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे साइनोसिस। एंड लास्टली इज द कार्डियक फेलियर, कॉर पाल्मोनल। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म है कॉर पाल्मोनल। मेनली क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट का क्या होता है, लंग का प्रॉब्लम होता है। तो लंग का प्रॉब्लम की वजह से मेनली क्या होता है, राइट साइडेड जो हार्ट है वो फेल हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर पाल्मोनल। किस लिए होता है, क्योंकि लंग में प्रॉब्लम है, तो लंग में जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी व्हिच इज अटैच्ड विद द राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग में जा रहा है, लंग का प्रॉब्लम की वजह से लंग का आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसके वजह से राइट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू पंप adequate amount of blood to the pulmonary artery, so that may lead to right sided cardiac failure. Okay, this is the most common clinical profile or clinical symptom of the patient of chronic bronchitis. तो हम लोग पहले डिस्कस कर लिए क्या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग जान लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट जो डिजीज था एम्फाइसीमा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ
emphysema, abnormal permanent dilatation of the air spaces distal to the terminal bronchioles with associated destruction of the alveolar wall. तो यहाँ पे क्या होता है एम्फाइसीमा में, क्या होता है मेनली जो ब्रोंक्यूल है डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एयर स्पेसेस जो है उसमें क्या होता है परमानेंट एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है और उसके साथ एल्वुलर वॉल जो है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एम्फाइसीमा. ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द कॉजेस? सेम कॉजेस, smoking cigarette, inhaling toxin or other irritants, alpha-1 antitrypsin deficiency, exposure to pollutant at work, chemicals, fume, dust, etc. Those are the most common etiological factor which are same in the chronic bronchitis as well as the emphysema also. Okay, next the pathophysiology, how the emphysema occurs. First, due to the etiological factors, inflammation of airway epithelium. तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पहले डिस्कस कर लिए, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर के वजह से क्या होगा, एयरवे एपिथेलियम जो है, एयरवे में जो एपिथेलियम लाइनिंग है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा. ठीक है, दैट में लीड्स टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन. तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन के वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी जो सेल्स है मैक्रोफाज न्यूट्रोफिल वो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेगा और वहाँ से क्या रिलीज करेगा, साइटोकाइन रिलीज करेगा. ठीक है, अनदर वे there is inherited alpha-1 antitrypsin deficiency. It is the genetic condition. क्या होता है, जेनेटिक कंडीशन ये इनहेरिटेड होता है जिसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है उसका डिफिशियंसी होता है. दैट में लीड्स टू न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस रिलीज इलास्टेज. तो उसका डेफिशिएंसी के वजह से न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो है वो क्या करेगा, इलास्टेज बोल के एक एंजाइम रिलीज करेगा. ठीक है, दैट में लीड्स टू अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी लीड्स टू फेलियर ऑफ इलास्टेज इनएक्टिवेशन. तो हम लोग को जानना चाहिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसका मेन फंक्शन है इलास्टेज को इनएक्टिवेट करना. ठीक है, उसका और भी एक नाम है इलास्टेज इनहिबिटर, बट वो पर्सन का अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है. तो डेफिशिएंसी की वजह से वो जो मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल इलास्टेज रिलीज कर रहा है उसको इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा, फेलियर होगा इनएक्टिवेट करने में. तो बोथ में लीड्स टू increase protease activity with breakdown of elastin in connective tissue of the lung. तो both cytokine और elastase inactivation के due to failure of elastase inactivation both में leads to क्या करेगा, lung में जो connective tissue है elastin उसको break down कर देगा. कौन कर रहा है, प्रोटीएस एंजाइम कर रहा है, क्योंकि एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी है, एंटीट्रिप्सिन प्रोटीएस को इनहिबिट नहीं कर पा रहा है, तो प्रोटीएस ज़्यादा रिलीज होकर लंग में कनेक्टिव टिश्यू जो है इलास्टिन उसको ब्रेक डाउन कर देगा. दैट में लीड्स टू लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द ब्रोंकियल वॉल फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन बाय द इलास्टेज. तो ब्रोंकियल वॉल में जो इलास्टिन है उसका ब्रेकडाउन के वजह से ब्रोंकियल वॉल का इलास्टिन नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, ब्रोंकियल वॉल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा. तो इलास्टिसिटी नहीं रहा, वहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रोंकियल वॉल जो है वो रिकॉयल नहीं कर पाएगा. ठीक है, उसका रिकॉयल एबिलिटी लॉस हो जाएगा. ठीक है, दैट में लीड्स टू लंग्स बिकम डैमेज्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शंस टू इरिटेंट्स एंटरिंग एयरवे एंड एल्वुलाई. तो लंग में अभी जो इरिटेंट घुस रहा है, डस्ट पार्टिकल घुस रहा है, फॉरेन बॉडी घुस रहा है, वो क्या करेगा, एयरवे में घुस के एल्वुलाई में घुस के लंग को डैमेज कर देगा. ठीक है, दैट में लीड्स टू इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल. तो जिसके वजह से क्या होगा, डिस्टल और से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो एयर स्पेस है उसमें इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट हो जाएगा. मीन्स वो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकेंगे, उसका साइज पहले की तरह नहीं आ पाएगा, उसका डायलेटेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट कोलैप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कॉजिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से कोलैप्स होने की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. ठीक है, दैट में लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वुलर वॉल, रिड्यूसेस लंग सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज. तो एल्वुलर वॉल में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जहाँ पे एयर एक्सचेंज होने का था वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, तो वहाँ पे एल्वुलर स्पेस में और एल्वुलर वॉल में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड किए हो. एक साइड में
तो एक साइड में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ फाइब्रस एंड मसल टोन, ब्रेक डाउन ऑन एल्व्यूलर इलास्टिसिटी। एल्व्यूलस में जो भी इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू था वो भी, उसका भी इलास्टिसिटी ब्रेक डाउन हो रहा है। और फाइब्रस और मसल टोन, फाइब्रस लॉस ऑफ फाइब्रस एंड मसल टोन हो रहा है। दैट विल लीड्स टू इनएबिलिटी ऑफ द लंग टू सर्कुलेट सफिशिएंट एयर सप्लाई टू द बॉडी। तो एल्व्यूलस में मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एल्व्यूलर वॉल में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है तो एयर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो एल्व्यूलर में एयर एक्सचेंज नहीं होगा तो लंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाएगा। दैट में लीड्स टू इम्पेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजन, कॉज हाइपोक्सीमिया। तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोक्सीमिया। बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड लंग फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोक्सिया, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन द बॉडी। इन द अदर वे, इनएबिलिटी ऑफ एल्व्यूलर रिकॉइल नॉर्मली आफ्टर एक्सपैंडिंग। तो एल्व्यूलर में इलास्टिसिटी कम हो गया, इलास्टिसिटी नहीं है तो वो रिकॉइल नहीं कर पाएगा। एक बार एक्सपैंड करने के बाद वो एल्व्यूलाई रिकॉइल नहीं कर पा रहा है। दैट में लीड्स टू ब्रोंकियल कोलैप्स। ब्रोंकियल जो है, ब्रोंकाइल्स जो है, ब्रोंकियोल्स जो है वहाँ पे क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन नॉट बी एक्सपर्ट एज इज डिमिनिस्ड। तो वहाँ से जो अमाउंट ऑफ एयर निकालना चाहिए एक्सपिरेशन के टाइम में वो नहीं निकल पा रहा है। दैट में लीड्स टू एयर ट्रैप्ड इन एल्व्यूलाई कॉजेस ओवर डिस्टेंशन ऑफ लंग। तो डिफ़िकल्टी इन एक्सलेशन हो रहा है। एक्सलेशन के टाइम में क्या होगा, एल्व्यूलाई से एयर निकाल के बाहर आएगा ना, और वहाँ पे अंदर में इनहेलेशन करके न्यू एयर घुसेगा, बट वहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है, वहाँ पे एक्सलेशन भी नहीं हो पा रहा है, अंदर में एयर भी नहीं आ पा रहा है, और एल्व्यूलाई का एक्सलेशन का जो एयर है वहाँ पे ही रह जा रहा है। उसके वजह से ये एल्व्यूलाई का साइज भी बढ़ जा रहा है और एल्व्यूलाई भी ओवर डिस्टेंडेड हो रहा है। बोथ मे लीड्स टू एम्फाइसीमा। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस हो गया, इसको तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी। तो किसी का एम्फाइसीमा हुआ है तो उसका लंग का क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम दिखेगा, माइक्रोस्कोपिकली क्या क्या प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, उसको ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन द लंग्स अपीयर मोर वॉल्यूमिनस विथ राउंडेड एज। तो पहले हम लोग डेफिनेशन में बोला था पार्मानेंट एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द एयर स्पेसेस। तो पार्मानेंट डायलिटेशन ऑफ द एयर स्पेसेस की वजह से लंग का कैपेसिटी भी लंग का जो अपीयरेंस है वो भी वॉल्यूमिनस दिखेगा और लंग का जो एजेस है वो राउंडेड एज दिखेगा। ठीक है। द एयर स्पेसेस अपीयर डायलेटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ सब प्लूरल बुले। तो एयर स्पेस जो है वो भी परमानेंटली डायलेटेड हो जाएगा और लार्ज एरिया जो है कभी लार्ज एरिया ऑफ ब्रोंकियल जब डिस्ट्रक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे बुले। तो क्या फॉर्म करेगा, सब प्लूरल बुले। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपी शोज डायलेटेड एयर स्पेसेस विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्व्यूलर सेप्टल वॉल। तो माइक्रोस्कोपिकली हम लोग जब देखेंगे तब देखेंगे एयर स्पेस डायलेट हो गया है और लंग में एल्व्यूलाई जो है, एक एल्व्यूलाई और एक एल्व्यूलाई से सेप्टा बोल के एक वॉल से सेपरेट होता है और सेप्टल वॉल जो है जो दो एल्व्यूलाई को सेपरेट कर रहा था वो वॉल में डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो वही हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फाइसीमा। मेनली देयर आर 4 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा। सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा begins in the respiratory bronchioles and spread peripherally। तो ये टाइप ऑफ एम्फाइसीमा क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट होकर पेरिफेरी में स्प्रेड करता है। ऑल्सो टर्म्ड सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा, इसका और एक नाम है सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा। दिस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग स्टैंडिंग सिगरेट स्मोकिंग एंड predominantly involves destruction of the bronchioles in the upper half of the lung, but the alveolar sac remain intact। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो बहुत दिन से क्रॉनिक स्मोकर है, चेन स्मोकर है, बहुत दिन से सिगरेट स्मोक करता है, उन लोगों को मेनली ऐसा होता है
जिसके वजह से क्या होता है, ब्रोंकियोल जो है उसमें डिस्ट्रक्शन होता है। मेनली लंग का अपर पार्ट जो है, बहुत सारा लोब होता है लंग में, अपर हाफ में मेनली जो ब्रोंकियल है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। और ऐसा कंडीशन में एल्वुलर सैक में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, एल्वुलर सैक नॉर्मल ही रहता है, इंटैक्ट रहता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा। नेक्स्ट second is pan-acinar emphysema. In pan-acinar or pan-lobular emphysema, there is destruction of the respiratory bronchioles, alveolar duct and alveoli in the lower half of the lung. तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल का भी डैमेज होता है, उसके साथ एल्वुलर डक्ट एल्वुलाई उसका भी डैमेज होता है। तो एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई का डैमेज होने के लिए हम लोगों को कौन सा पार्ट में जाना पड़ेगा, लोअर हाफ ऑफ द लंग। लंग का लोअर हाफ में मेनली ये डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, पैन एसिनर एम्फाइसीमा जनरली इज ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट्स विथ होमोजाइगस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, मीन्स जेनेटिक कंडीशन जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जिन लोगों का है उन लोगों का पैन एसिनर एम्फाइसीमा ज़्यादा होता है। ठीक है, उस तुम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड इज पैरासेप्टल एम्फाइसीमा. Paraceptal emphysema, also known as distal acinar emphysema, preferentially involves the distal airway structure, alveolar duct and alveolar sac. The process is localized around the septa of the lungs or pleura. It is one of the most common cause for spontaneous pneumothorax. तो इसमें पैरासेप्टल नाम से पता चल रहा है क्या, पहले बोला था एल्वुलस जो है तो उसमें सेप्टा होता है और सेप्टम वॉल होता है। तो ये सेप्टल वॉल का जब डिस्ट्रक्शन होता है और डिस्टल वॉल का डिस्ट्रक्शन होता है, एल्वुलर डक्ट एल्वुलर सैक का डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो किसके अंदर में आता है, पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। तो सेप्टम में जब प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग पैरासेप्टल एम्फाइसीमा बोलेंगे। इसके वजह से मेनली क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स होने का चांस ज़्यादा है। तो न्यूमोथोरैक्स क्या है, न्यूमोथोरैक्स इज द clinical condition in which there is a air leakage in the space between the lung and the chest wall. लंग और चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस है उसमें एयर लीक हो जाता है। बहुत सारा कंडीशन की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा, चेस्ट इंजुरी, इसके वजह से भी हो सकता है। और ये टाइप ऑफ पैरासेप्टल एम्फाइसीमा की वजह से भी न्यूमोथोरैक्स होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज द इरेगुलर एंड मिक्स्ड पैटर्न। नाम से पता चल रहा है क्या, इसमें बहुत सारा टाइप मिक्स होगा। इट इंक्लूड्स मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एम्फाइसीमा एंड यूजुअली सीन इन एल्डरली स्मोकर। तो इसमें एक से ज़्यादा, जो पहले हम लोग डिस्कस कर लिया, उसमें एक से ज़्यादा जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एम्फाइसीमा है उसमें मिक्स होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर मिक्स पैटर्न। ये हम लोग को मेनली कॉमनली हम लोग कौन सा पेशेंट को देखते हैं, एल्डरली जो स्मोकर है, एज ज़्यादा हो गया और स्मोकर भी है, उन लोगों में इरेगुलर एंड मिक्स पैटर्न ऑफ एम्फाइसीमा दिखता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फाइसीमा। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल प्रोफाइल, मीन्स क्लिनिकल सिम्टम्स। सीवियर एक्सर्शनल डिस्निया, मीन्स जब पेशेंट कोई एक्सरसाइज करने के लिए जाएगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा, ज़्यादा काम करेगा, तब पेशेंट का डिस्निया होगा, मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। नेक्स्ट ट्रैकिपनिया इज द increase respiratory rate more than 20 breaths per minute. Okay, next barrel shaped chest, पेशेंट का और एक जो मेन फीचर है एम्फाइसीमा का, पेशेंट का जो चेस्ट का शेप होगा बैरल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो बैरल साइज चेस्ट पेशेंट का दिखेगा। तुम लोग एक बार गूगल में जाके बैरल शेप चेस्ट सर्च करने से तुम लोग को दिख जाएगा कैसा होता है ऐसा पेशेंट का चेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट cough occur in late stage of the disease with production of scanty mucus sputum. मेनली ऐसा कंडीशन में काफ उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेट स्टेज में होता है। बहुत दिन से किसी का एम्फाइसीमा है तो उसका काफ हो सकता है और काफ में उतना स्पुटम नहीं आएगा। पहले जो बोला था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में प्रोडक्टिव स्पुटम होगा, यहाँ पे उतना स्पुटम नहीं होगा, उसमें यहाँ पे स्कैंटी म्यूकस स्पुटम होगा। ठीक है, और लास्ट इज कार्डियक फेलियर, पहले भी बोल दिया, जो राइट साइडेड कार्डियक फेलियर होने का चांस है। लंग का डिजीज के लिए, मीन्स लंग का कोई प्रॉब्लम के लिए, कोई किसी का डिजीज के लिए किसी का हार्ट फेलियर होगा तो मेनली राइट साइड में होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल इज डायरेक्टली अटैच विद द लंग। ओके, तो ये है मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एम्फाइसीमा। दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक।
Rest part will be discussed in the later classes. Thank you for watching.